Having established an administrative base at Bimbat under his adjutant Major Rajiv Kumar, Thakur moved out with his men to surround Tuloli. His sister company, the 16 Grenadiers, had been holding observation posts and the firm base 3 kilometers from the top. Thakur met Colonel Thapa and Major Ajit at this base to share whatever little information they had. While the next few days were spent in reconnaissance and planning, the nights were spent in relentless forays up the hill to assess the strength of the enemy. Slowly it was becoming painfully clear to Thakur and his second-in-command, Colonel Vishwanathan, that the briefings they had been given had grossly misjudged the enemy. Those holding the heights were not a few well-armed militants. They were indeed a well-trained army, and an army that was well entrenched not only on the heights, but in all the routes to the top as well. Hi everyone. Delete everything in your mind that is not moving you forward. Today is 20th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, momentum is very important. Creativity thrives on momentum. Don't give space for self-doubt. Leaving long gaps in studies का मतलब पता है क्या होता है? Starting up the engine each time. Space for our mind to play tricks. Self-doubt and imposter syndrome can creep in. If we maintain discipline and regularity, तो we can gain momentum. We can access deeper levels of learning and understanding. Maintain our confidence. So that is why मैं आपको बोलता हूँ show up. Every day means every day. Every day is not going to be the same, but you should show up. Every day means every day. Always keep the wheels moving. Study full throttle. और गैप्स नहीं लाने, वरना एक गैप आता है आपको फिर से अपनी स्टडी फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, किक स्टार्ट करना पड़ेगा और इसमें बहुत टाइम लगता है. अभी जैसे 28 ऑफ मई को प्रीलिम्स का एग्जाम था, 1.5 मंथ हो गया है. मैं रोज बोल रहा हूँ स्टडीज को ब्रेक मत करिए. अभी हम फिर से किक स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफिकल्टी आ रहा है ना. एनीवे, अभी आप किक स्टार्ट करिए स्टडीज को और अब पूरे साल भर आपको ब्रेक्स नहीं लेने. स्टडी ऑन डेली बेसिस. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. ये वोकैबुलरी है. चाइड इसका मतलब है डांटना. टू क्रिटिसाइज यूजुअली जेंटली सो एज टू करेक्ट अ फॉल्ट. सुधारने के लिए, स्कोल्ड करना. स्ट्रैडल मतलब विस्तार. टू बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ समथिंग. स्पान, इंटरसेक्ट या फिर इंक्लूड. काउटाओ का मतलब होता है अधीन होना. एक्ट इन एन एक्सेसिवली सबसर्विएंट मैनर. प्रोस्ट्रेटेड का मतलब नमस्कार किया. ले वन सेल्फ फ्लैट ऑन द ग्राउंड, फेस डाउनवर्ड, स्पेशली इन रेवरेंस और सबमिशन. रेकॉन का मतलब अनुमान करना. एस्टैब्लिश्ड बाय काउंटिंग और कैलकुलेशन, कैलकुलेट. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. सी. सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9th. तो सैम की रैंक है 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास. तो नीचे से 38th है, यहाँ से 38th है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. ऐसे जब भी सवाल होते हैं तो हमें टॉप की रैंक पता है. टॉप की रैंक है 9th, नीचे से रैंक पता है 38th. तो ये जो 38th होगा ये 2 बार काउंट हुआ है. 9th रैंक फ्रॉम टॉप और 38th रैंक फ्रॉम बॉटम. तो अगर हम सिंपली 38 + 9 करेंगे, 38 + 9, 38 और 9, तो ये 2 बार काउंट हो रहा है. तो इसमें हम -1 कर देंगे. सो 46 इज द राइट आंसर. 38 + 9 इज 47. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? -1, बिकॉज सैम 2 बार काउंट हुआ है. सो दैट इज 46. Similarly, in a row of boys, G1 is 7th from the start and 11th from the end. तो start से 7th है और end से 11th है. In another row of boys, Vikas is 10th from the start and 12th from the end. तो इस दूसरे केस में वो 10th start से है और 12th end से है. So how many boys are there in both the rows together? Simple. ये 7th और 11th है, तो 7 और 11 कितना हुआ? 7 और 11 17, 17 - 1 मतलब 16 इस रो में हो गए, है ना. दिस 17. और जो दूसरा केस है इसमें हो गया अनदर रो में 10th स्टार्ट से है और 12th एंड से है. 10th स्टार्ट और 12th एंड से. तो 10 + 12 करिए. 10 + 12 इज 22. 22 - 1 इज 21. तो सेकेंड रो में इतने हुए. और जो फर्स्ट रो थी उसमें थे विकास इज
7 प्लस 11, तो 7 प्लस 11 इज 18, 18 माइनस 1 इज 17, तो 17 और 21 ऐड कर दीजिए, 38 इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द वे वी शुड सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये है आंसर राइटिंग। इंडस वाटर ट्रीटी, फूड प्रोसेसिंग, कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस। मैं आपको बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, इस पे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। ये आपको बोरिंग एक्सरसाइज लग रहा है, बट यही एक्सरसाइज आखिर में काम आना है, वर्क आना है, इधर से ही आप आंसर मेंस में लिखोगे। सो डू दिस एक्सरसाइज। हर एक को 2 या 1-2 पेजेस में आंसर लिखिए और इंडिविजुअली सारे आप इस वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं। ये मेंस कोर्स है, इसमें अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बहुत अच्छे से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऐसे करके पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हैं और ये प्रीलिम्स का कोर्स है। इसमें अभी ज्योग्राफी हो रहा है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होगी संडे को। इंटरनेशनल चेस डे 2023 जुलाई 20 को है। सो डिड यू नो द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड वाज नोन बाय द नेम चतुरंग। चतुरंग नाम से इसे जाना जाता था। ये 1500 साल पुराना है। जो डे है हम इसको कोमेमोरेट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, जब ये जो फाइड है, ये फेडरेशन है, 1924 में बना था, फ्रेंच नेम है ये। जुलाई 20 में ही हम चेस डे मनाते हैं। तो ये हमारे कुछ चैंपियंस हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद, रामेश बाबू, कोनेरू हम्पी, पेंटला हरिकृष्णा, हरिका, विदित अर्जुन, ये सब चेस चैंपियंस हैं। आप एक बात बताओ, ग्रैंड स्लैम कब बनता है? किसी भी पर्सन को हम ग्रैंड मास्टर कब बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर कब बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर कब बोलते हैं? ये इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है। सी, ये सारे मिलेट्स है, फिंगर मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, पर्ल मिलेट, तो ऑल दीज मिलेट्स में इंडिया वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है। ये छऊ डांस है, वेयर ट्रेडिशन डांसेस टू लाइफ, तो ये क्या है? छऊ डांस। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? It measures the percentage of households in a country deprived along 3 dimensions: health, education, and standard of living. Health, education, standard of living, to capture a more complete picture of poverty. तो 3 dimensions of poverty क्या है? Health है, nutrition and child mortality, education है, years of schooling and children enrolled, living standard में है cooking fuel, sanitation, water, electricity, floor और assets। तो ये मिलके बनता है 3 डायमेंशंस पॉवर्टी के, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अब ये जो नंबर्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के, लुक एट द नंबर, स्लाइट इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ है। देन ये गुजरात के भावनगर में स्थित एक लोकप्रिय पुरातात्विक संग्रहालय है, 1990 में बना था। यहाँ जैन धर्म से जुड़ी कलाकृतियों और पुरावशेषों का एक विशाल संग्रह है। सो ये श्री विशाल जैन संग्रहालय है। आप हैं बटुकेश्वर दत्त, रिमेंबरिंग द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। 1924 में आप भगत सिंह जी से मिले थे, चंद्रशेखर आजाद जी से इंस्पायर्ड होकर आपने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में अलॉन्ग विद महात्मा गांधी जी 1942 में। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं। राजस्थान ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम इनकम। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है इलेक्ट्रोक्यूशन का, नमामि गंगे साइट उत्तराखंड में। देन दिस इज एडिटोरियल, दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ पे बात है मिसिंग नंबर्स। कल हमने देखा था एक नया पैनल बनाने की बात है। पैनल होगा स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? नंबर्स होते हैं, नंबर्स, जैसे जनसंख्या कितनी है, कितने लोग किस सेक्शन में, किस एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर एनएफएचएस से रिलेटेड कोई डेटा है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो नंबर्स होने जरूरी है, बिकॉज नंबर्स के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक नई स्टैंडिंग कमिटी बनाई टू एडवाइज ऑन ऑफिशियल डेटा इंक्लूडिंग हाउस होल्ड सर्वेज, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कैरी करता है। तो एनएसएसओ डेटा कैरी करता है ये सारा, और वो सारी चीजें किसके थ्रू होगी? दिस मिनिस्ट्री एक स्टैंडिंग कमिटी बनी है जो एडवाइसेस देगी। ये हेड हो रहे हैं फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन साहब, और ये 2019 में जो सिमिलर पैनल बना था उसको रिप्लेस कर रहा है। काम क्या होगा? किस तरीके से सर्वे डिजाइन किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए डेटा गैप, और पायलट सर्वे भी होगा कि नए और कौन से डेटा सेट्स हमें कलेक्ट करने हैं। तो 14 मेंबर का पैनल है, 28 मेंबर इकोनॉमिक डेटा रिव्यू पैनल है। द पॉइंट इज कि अभी फिर से स्टडी करके एक रिफ्रेश करने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से डेटा कलेक्शन करना है। वन ऑफ द न्यू पैनल्स फर्स्ट टास्क विल लाइकली पर्टेन टू द रिजल्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे।
क्योंकि जैसे हमें जीडीपी भी कैलकुलेट करना है, हाउस होल्ड इनकम कैलकुलेट करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हमारे पास डेटा लाएगा। तो ये डेटा का फॉर्मेट ये पैनल अभी सर्वे को बताएगा। कई बार सेंसिटाइज करेगा, मेथड्स कौन सी डिप्लॉय करना है, इंटरप्रिटेशन होगा, न्यूएंसेस होंगे, जो बारीकी है इस पूरी प्रोसेस की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये इकोनॉमी का आउटपुट आइडेंटिफाई करता है। सीपीआई और जीडीपी, और ये भी नंबर्स हैं, तो नंबर्स करेक्ट होना बहुत जरूरी है। टॉप गवर्नमेंट के जो मैंडरिन्स हैं, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेट जो कर रहे हैं, इन्होंने डिस्क्रेडिट किया था ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल मशीनरी की जो मेथड है, बिकॉज इनका जो रिपोर्ट आया था उस पर डाउट्स क्रिएट हो गए थे। तो अभी फिर से रीबूट करने की बात है, लेट अस वेट एंड वॉच। डेटा क्या करेक्ट है, क्या वो टाइम पे इंडिपेंडेंट नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने वर्क किया है, या फिर कई बार इनके पास मैन फोर्स नहीं होता, इनके पास मैन पावर नहीं होता, सो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है नहीं है, अनअवेलेबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे ये पैनल पूरे वर्क करेगा और फिर से करेक्ट डेटा जो ज़रूरत है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। अ जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। तो सी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं तो वहाँ भी ज़रूरी है कि जो डिग्निफाइड लाइफ हो, डिग्निफाइड लाइफ में एम्प्लॉयमेंट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन एट्सेट्रा, तो ये सब डिग्निफाइड मैनर में होना चाहिए। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक स्टेटमेंट है जो अक्सर जुडिशियल केसेस में बोला जाता है। एक्चुअली सच टाइप ऑफ जो केसेस होते हैं डिफरेंटली एबल्ड के, ये बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के केसेस होते हैं। अगर जुडिशियल अटेंशन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे जस्टिस फिर इग्नोर भी हो जाता है। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 या पीडब्ल्यूडी एक्ट बोलता है कि डिसेबल्ड पर्सन्स जो हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनको लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है, प्रमोशन किस तरीके से होना चाहिए, वो भी बराबरी के अधिकार पे। तो 3% रिजर्वेशन है डिसेबल्ड का एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी में भी है, और जो प्रमोशन है वो भी अकॉर्डिंगली यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है 3% का यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात है। अब ये जो बात है ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे रिवर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट इंदिरा सावनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/STs वाज विदड्रॉन, तो इसको रिवर्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। द पॉइंट इज कि अभी जो रिजर्वेशन है यहाँ पे वो PWD के लिए भी कॉन्टिन्यूड होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। ओके, अभी हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल इस डिटेल्स में नहीं जाएंगे। द पॉइंट इज कि हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होना चाहिए, और ये टॉपिक हमको सोशोलॉजी के एंगल से समझने की ज़रूरत है, सोशोलॉजी के एंगल से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो आर्टिकल 16 के अगेंस्ट नहीं है, ये एक सवाल उठता है। बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शंस है, ये गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसेज। द राइट ऑफ गेटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो राइट है कि एम्प्लॉयमेंट का राइट है, फिर प्रमोशन का भी राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 से डिराइव हो सकता है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज गुड। द जुडिशरी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रांटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी टू द disabled, especially the enactment of PW Act 1995. There have been several court cases where persons with disabilities have had redress of their grievances and been able to gain their meaningful and dignified place in society. Very important line. इस केस में prolonging the process of final adjudication in the pending issue of reservation in promotion, judiciary फिर यहाँ पे एक example set कर सकती है। So again, let us see. डिनायल ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक मेजर फैक्टर है इन डिनाइंग द डिसेबल्ड द राइट टू प्रोग्रेस टू अ हायर लेवल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिल रहा है तो ये चैलेंज आ रहा है, ये यहाँ पे आर्टिकल में बताया है। मोर देन कोर्ट एक्शन, रीविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोकर हुआ था 1960 में। इंडस रिवर की जो रिवर्स हैं, तो उसमें जो 3 रिवर्स हैं, जो टॉप 3 इधर की रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं, इन वेस्टर्न रिवर्स का एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को मिला, और जो इधर 3 रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स है, इसका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिला। इस आर्टिकल का बैकग्राउंड ये है कि वाटर आने वाले टाइम पे एक स्कार्स रिसोर्स बनने वाला है, स्कार्स रिसोर्स।
सो इंडस वाटर ट्रीटी और IWT रेगुलेट करता है इंडस वाटर कोर्सेज बिटवीन द टू रिपेरियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये दोनों यूजुअली अनफ्रेंडली रिलेशंस भी रहे हैं. सो द पॉइंट इज कि इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर से 60 इयर्स भी अच्छे से वर्क कर रही है, तो इसमें कुछ मेरिट्स हैं, बट वाटर एक स्कार्स रिसोर्स बन रहा है, फ्यूचर में वाटर और चैलेंजेस होने वाले हैं, तो इसको रिविजिट करने की जरूरत है. तो exercising judicial recourse to settle the competing claims and objections arising out of the construction and design element of run of river hydroelectric projects. ये कौन से projects होते हैं run of river? ये बहुत ह्यूज साइज के रिवर्स के डैम्स नहीं होते हैं, ये स्मॉल स्केल डैम्स होते हैं, और ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की छूट है कि इंडिया इवन जो पाकिस्तान के को जो अलोकेट हुआ है एक्सक्लूसिव राइट, उन 3 रिवर्स में भी इंडिया रन ऑफ रिवर वाटर बना सकता है, जैसे कि चेनाब, इंडस, झेलम. बट पिछले कुछ टाइम पे पाकिस्तान ने यहाँ पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाने भी चालू कर दिए. तो अक्सर इस मैटर को लिया जाता है हाग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, फिर अननेसेसरी वो प्रोजेक्ट डिलेज भी होते हैं और एंट्रोपी आती है. किशन गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चेनाब पे. इंडिया ने ऑब्जेक्शंस यहाँ पे देखा कि कोर्ट का आर्बिट्रेशन इज नॉट कॉम्पिटेंट, बिकॉज इंडिया जो भी इस पे प्रोजेक्ट्स बना रहा है वो वेल विद इन द लॉ है. पर एक बात और है कि फ्यूचर में सप्लाई ऑफ वाटर बड़ी शॉर्टेज होने वाली है. तो इस केस में, इस ट्रीटी में ऐसा भी अक्सर बोला जाता है कि इंडिया बहुत जनरस है पाकिस्तान के लिए व्हेन इट कम्स टू रिवर वाटर शेयरिंग. तो दैट इज वाई वाटर पॉलिसी में रिविजिट करना भी जरूरी होगा. Vulnerable to climate change, as most of them include fixed allocation of amounts of water use that are concluded under the assumption that future water availability will remain the same as today. ऐसा नहीं है, फ्यूचर में वाटर अवेलेबिलिटी कम भी हो सकती है. तो दैट इज वाई द आइडिया इज कि जैसे आर्टिकल 2 में ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलज, रावी, ब्यास एक्सक्लूसिव टू इंडिया, सिमिलरली वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान. तो इस पे रिविजिट करने की जरूरत है. तो लेट अस सी, क्लाइमेट चेंज इज अ थिंग, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन जो जिससे रिवर में पानी आता है वो चेंज हो रहा है, रन ऑफ चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है. सो ओवरऑल दिस इज क्रिएटिंग डिफिकल्टी. सो पॉइंट इज कि वाटर एक स्कार्स रिसोर्स बनने वाला है, और यहाँ 2 टर्म है, इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, और इसमें किसी भी टाइप का हार्म रिवर इकोसिस्टम को नहीं आना चाहिए. तो व्हाट इज ERU? इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन. व्हाट इज NHR? नो हार्म रूल. सो दैट इज वाई यहाँ इसको रिविजिट करना है. आर्टिकल 6 जो है इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, तो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होती ERU की. ERU मतलब इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन. सो ये जो वर्ड्स हैं इनमें भी एम्बिग्यूटी है, और एम्बिग्यूटी से दिस एंट्रोपी क्रिएट होती है. तो लैक ऑफ ट्रस्ट भी है दोनों नेबर्स में. वर्ल्ड बैंक एक पार्टी थी IWT की, एक फोरम भी बनाया गया था. द पॉइंट इज वाटर इज अ स्कार्स रिसोर्स. इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चीजों को देखना चाहिए. ऑनलाइन अब्यूज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन अब्यूज एक बहुत बड़ा एक थ्रेट भी हो जाता है, जिससे एट टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी, स्टूडेंट्स की थॉट प्रोसेस एटसेट्रा इम्पैक्ट होती है. हमें ऑनलाइन अब्यूज से बचना चाहिए. ये जो बुली का कल्चर होता है, बुली क्या होता है, बुली कल्चर इज लाइक कि यू स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ समवन, यू स्टार्ट पासिंग अनसॉलिसिटेड रिमार्क्स. दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सृजन इंडिया 1 में वी हैव स्ट्रिक्ट पॉलिसी, सच टाइप ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड. तो ये जो ऑनलाइन अब्यूज होते हैं, ट्रोल्स होते हैं, इन सब का एक लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है एट टाइम्स स्टूडेंट्स में. तो वी शुड अवॉइड दिस, और इसके लिए जरूरी है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी दिखाना, बच्चों को सिखाना चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, यू शुड नॉट इजीली गेट इम्पैक्टेड, कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप हर्ट फील होने लग गए, देन आप अपना स्टडी नहीं कर पा रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको लाइक यू आर नॉट फीलिंग वेल, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं. नो, यू शुड बी इमोशनली मैच्योर, मेंटली स्ट्रांग. सो 2 वे हमें वर्क करना है. एक तो हमें सेंसिटाइज करना है, सच टाइप ऑफ कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, ट्रोल कल्चर, टॉक्सिसिटी, नॉट ओके. ऑनलाइन अब्यूज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. एजुकेशन में इंटरनेट की जरूरत आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ेगी. सो द पॉइंट इज दिस वी शुड नॉट एक्सेप्ट. एज अ टीचर, एज अ एल्डर्स, और इवन जो बच्चे हैं उनको भी सिखाना चाहिए हाउ टू हैव दिस इंटरनेट प्रेजेंस, जिसको नेटिकेट्स बोलते हैं, नेटिकेट्स. सिमिलरली हमें सोशल
में कैसे, सोसाइटी में कैसे सरवाइव करना चाहिए। देखो कई बार ना एक बाउंड्री ड्रॉ करना जरूरी होता है। बाउंड्री ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रूड हो। बाउंड्री ड्रॉ करने का मतलब होता है आप सेल्फ केयर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सेल्फ केयर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ओके, सो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ केयर है, ये भी करिकुलम में होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज और जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इसमें स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत वल्नरेबल होते हैं। इवन यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में भी एग्जाम इज टफ, देर आर सो मेनी चैलेंजेस, फेलियर्स ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ये हेल्दी रखें, देन ओनली स्टूडेंट विल परफॉर्म वेल। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। तो सक्सेस होने के लिए केवल किताबें पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट। ओवरऑल हमें हमारे जो पर्सनालिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस पे भी साइमल्टेनियसली हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि यू विल रियलाइज इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है एट टाइम्स अगर हम खुद का केयर नहीं करते हैं। तो सेल्फ केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाई आर टमेटो प्राइसेस स्टिल हाई? देखो टमेटो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। आरबीआई के बुलेटिन ने भी बताया कि हिस्टोरिकल हाई है, इन्फ्लेशन हो रहा है। टोमेटो जो होता है ये प्राइमरली प्रोड्यूस होता है आंध्रा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और गुजरात में। 50% यहाँ से आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बताया कि ये टोमेटो खारिफ और राबी दोनों होता है। राबी क्रॉप जो होती है वो मार्च से अगस्त में होती है, खारिफ क्रॉप आती है सितंबर में। अब महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में जो टोमेटो है वो मानसून के मंथ्स में होता है, जबकि समर में आंध्रा और इस रीजन में समर के मंथ में होता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो क्रॉप इस बार आनी थी, हीट वेव से प्रॉब्लम आया, हायर टेम्परेचर अप्रैल टू मई था, मानसून डिले हो गया और फिर जो टोमेटो आए उसमें पेस्ट्स का अटैक हो गया, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो वो सेल नहीं हुआ, तो फार्मर्स ने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया और सप्लाई साइड बॉटलनेक आ गया, क्रंच आ गया सप्लाई में। और फिर इनसेसेंट रेन्स आ रहा है तो फर्दर न्यू क्रॉप भी डिले हो गई। तो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स ओवरऑल सप्लाई ऑफ टोमेटो बहुत कम हो गया है। तो द पॉइंट इज कि नाबार्ड ने यहाँ पे बताया टोमेटो मोस्ट वोलेटाइल है। टॉप में व्हाट इज टॉप? टोमेटो, अनियन और पोटैटो। इसमें जो है वो टोमेटो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है, इसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रहा है। मल्टीपल रीजंस है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुआ, वेजिटेबल्स वैसे भी शेल्फ लाइफ कम होता है, जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो बहुत सॉलिड रहना ज़रूरी है वेजिटेबल्स में। तो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना है बिकॉज टोमेटो हाईली पेरिशेबल होता है, शेल्फ लाइफ कम होती है। मार्केट फोकस्ड कोलैबोरेशन जरूरी है, प्रोड्यूस, प्रोसेस एंड मार्केट प्रोडक्ट्स को। ओके, तो प्रोसेसिंग यूनिट की बात है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीक सीजन में जब ज्यादा डिमांड आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज करें, एलिमिनेट करें मिडिल मैन को, एनकरेज करें फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपना जो फसल है वो एपीएमसी में ही करो प्रॉपर मैनर में। तो इससे मिडिल मैन का जो अननेसेसरी इन्फ्लेशन या फिर एट टाइम्स आर्टिफिशियल शॉर्टेज होता है उसमें सफलता मिलेगी, उसको दूर किया जा सकेगा। व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम नेटो समिट? नेटो चाहता है यूक्रेन को इंक्लूड करना, और यूक्रेन नेटो में आएगा तो रशिया के साथ आउटराइटली वॉर हो जाएगा। तो नेटो यूक्रेन को इसलिए बिकॉज ऑफ रशिया के साथ आउटराइट वॉर इंक्लूड नहीं करना चाहता है। तो इस बार का जो समिट था अगेन इसमें टॉक्स हुए। सम मेंबर्स आर सेइंग कि नेटो को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। नेटो होता है एक मिलिट्री ब्लॉक। न्यूज़ी का मतलब इट इज फिल्ड विथ न्यूज, बहुत सारी गॉसिप्स है वहां पे। ओके, द न्यूज और फ्रेश इंफॉर्मेशन। तो न्यूज हमेशा एक सिंगुलर वर्ब होता है, ऑल्दो यहाँ पे एस लगा हुआ है। द न्यूज फ्रॉम होम, द नो न्यूज। ओके, सो दिस इज न्यूज। तो न्यूज व्यूज की तरह राइम करता है। और फिर इसमें लाइक टेक ऑफ मतलब एन इमिटेशन, स्पेशली इन द वे ऑफ कैरिकेचर। तो ही डिड अ नाइस टेक ऑफ गांधी जी, मतलब उनका मिमिक्री सॉर्ट ऑफ थिंग किया है। देन स्नाफू इज अ स्लैंग इन अ स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन। The lights are burning. Burn means to be on fire or alight. The house is burning, like that. The candle is burning. Okay. कंजर्व और प्रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी भी चीज को प्रिजर्व करते हो तो उसको इंटैक्ट रखते हो। प्रिजर्व कर दिया है हमने, स्पेसिमन प्रिजर्व किया बायोलॉजी में। और प्रिजर्व, कंजर्व का मतलब होता है आप उसको बहुत केयरफुली यूज करते हो। जैसे एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करें, वाटर को कंजर्व करना है तो वाटर का यूजेज बंद नहीं कर देंगे, बट उसको बहुत हम थॉटफुली यूज करेंगे। लैंगर का मतलब होता है स्लगिशनेस, लेथार्जी, कंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, दिस इज दिस वर्ड। ओके, अब है सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बिफोर 3 जजमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक। इसमें सुप्रीम कोर्ट अभी देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स देती है। देन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एयरबस C295 का
इंडिया में बनाने की बात है, इंडिया सपोर्ट्स यूएन ऑन ब्लैक सी इनिशिएटिव। ब्लैक सी में क्या है, जो ग्रेन्स है, फसल है, जो यूक्रेन की फसल है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक सी के थ्रू वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट की जा पाएगी। यूक्रेन और रशिया मेजर प्रोड्यूसर हैं व्हीट एटसेट्रा ग्रेन्स के। अगर यहाँ सप्लाई बंद होती है तो वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज भी हो सकता है। इंडिया क्लाइम 7 पॉइंट्स टू 80 ऑन पासपोर्ट इंडेक्स। सिंगापुर अभी भी टॉप पोजीशन पे है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट टॉप है, मतलब बिना वीजा के आप बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हो अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, इसमें 199 पासपोर्ट है, 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो इंडिया का 80th रैंक आया है, 80 रैंक आया है इंडिया का। तो पहले 14 में 76 था, 52 कंट्रीज। जापान टॉप पोजीशन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फॉर 5 इयर्स था, अभी ये थर्ड हो गया है। फर्स्ट अभी दिस सिंगापुर है। ओके, तो ये इंडिया की रैंकिंग है। पर्सनल लॉ बॉन्ड्स बोर्ड्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस ऑन यूसीसी। देन दिस इज फ्रेंच राइट्स पार्लियामेंट, चाइना, अर्दोगन, 50 बिलियन डील साइन हुआ है डॉलर का अरब नेशंस के साथ। Then this is Crimea evacuates thousands after fire at military facility. Then this is Putin will not travel to South Africa. BRICS summit होने वाला है। US economist declines top EU antitrust position. Tata to invest 4 billion for building this Jaguar Land Rover battery cell giga factory in UK. तो future is this battery की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, ई व्हीकल्स। टाटा मोटर्स भी है और टाटा जो है ग्रुप वो ओन करता है JLR को भी। तो यूनाइटेड किंगडम का ये ब्रांड है, यहाँ पे अभी गीगा फैक्ट्रीज बनाने की बात है। SBI हॉलिडे लोन, डुंजो, और ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, यहाँ पे बात है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन मोर इगैलिटेरियन बाय मैमल स्टैंडर्ड। एक्चुअली एक सेइंग होता है, सेइंग ये होता है कि बच्चों को रियर करना उसमें केवल पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स में भी मतलब मदर फादर दोनों बहुत रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों को ग्रो करके एडल्ट बनाने में। नॉट ओनली मदर फादर, जैसे पहले हमारा जॉइंट फैमिली था, तो इट इज़ लाइक कि आपको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। ह्यूमन मेल्स नीड हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन टू सर्वाइव। तो दिस अपीयर्स टू बी ड्यू टू सेवरल यूनिकली ह्यूमन फीचर्स। सेकेंड रीजन ये है कि जो ह्यूमन इन्फेंट होता है वो इतना रोबुस्ट नहीं होता है, ह्यूमन जो नया बच्चा आता है। बाकी दूसरे जो स्पीशीज होते हैं वो लाइक डे 1 से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ह्यूमन इन्फेंट को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको दोनों पेरेंट्स चाहिए। तो दैट इज़ वाई इंडिया में ये जो कल्चर हमने डेवलप हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ, उसमें मोनोगैमी है। ओल्ड सेइंग है कि होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड कम्स टू माइंड। बच्चे को पालना है तो सबकी ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन की बात है, तो दैट इज़ वाई ये जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने बोला कि हमारे जो पैटर्न है वो इसलिए ऐसा डेवलप हुआ है। ड्रामेटिक फॉसिल शो मैमल अटैकिंग डायनासोर। तो ये मैमल्स डायनासोर्स पे भी अटैक करते थे। ऑल डायनासोर्स वर नॉट यूज्ड टू बी लार्ज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, क्विकली हम आंसर राइटिंग देखते हैं। आज 17th हो गया है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे मोर और लेस, फिर इतना डिले नहीं होगा। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट T1 साइकिल पे हम आंसर राइटिंग का मैं आपका रिव्यू कर लूँगा। आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोई फैंसी चीज़ नहीं रखो। प्रीलिम्स में भी मैंने बताया था, ये जो डेली लिख रहे हो यही काम आएगा, बाकी कोई भी फैंसी चीज़ काम नहीं आती है। जो स्टूडेंट जितना जल्दी जल्दी लिख पाएगा, अपनी बातें रख पाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता बहुत कुछ होगा, बट वो सब हवा में होगा, बैंक नहीं होगा, कंसोलिडेटेड नहीं होगा। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। दूसरे केस में बहुत सारी चीज़ें आती होगी पर आप लिख नहीं पाओगे जल्दी जल्दी। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नोइंग सो मेनी थिंग्स अगर आप उसको अपनी कॉपी में नहीं लिख पाते। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो कॉपी में आप जो लिखते हो यही आपका ID कार्ड है। इसी को बेहतर से बेहतर हमें डेली बेसिस पे बनाना है और लर्न फ्रॉम ईच अदर, आपको बहुत बेनिफिट होगा। श्रवण ने कितने अच्छे से हिंदी में लिखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, फिर इसके बारे में सारे पॉइंट्स लिखे, हाइब्रिड है, बैटरी ऑपरेटेड है ना, यस। देन इसके अलावा इससे उद्योग में चुनौतियां और इसके संदर्भ में अगर हम ना थोड़ा लाइक इसको पहले स्लाइड फोकस करके क्लिक करें ना, तो इसका पिक्चर क्वालिटी की रीडेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। आपने बहुत अच्छा लिखा है बट ये स्लाइटली ब्लर हो रहा है। आई थिंक ये ठीक हो जाएगा अगर हम, नहीं ये यहाँ पे ठीक है, यस। वेट अ मिनट, इसको सेपरेट ओपन करके दिखा देता हूँ। यस, नो इट इज़ गुड, आपने अच्छे से लिखा है, क्लिक भी अच्छे से किया है। तो देखो, शहरों की गुणवत्ता, सरकारी प्रयास, फेम 2 है, EVs हैं, ओके वेरी नाइस। और यहाँ पे आपने विषय
वाहन के प्रकार। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो श्रवण, ज्यादा से ज्यादा लिखो, जितना ज्यादा आप लिखोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। दीपेश, दिस इज गुड। ई व्हीकल्स, इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बहुत सिस्टमेटिक कंसाइज नोट्स बना रहे हो, ये बहुत यूजफुल रहेंगे आपको दीपेश, और ऐसे पढ़ने से हमारी पढ़ाई भी ज्यादा बेहतर हो रही है। वेरी गुड। एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में बताया आपने, गुड, वेरी नाइस। और ये है लाइटनिंग ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी जब भी आता है एक डायग्राम होना चाहिए, तो ड्रॉ डायग्राम। ज्योग्राफी में चार्ज सेपरेशन एटसेट्रा डायग्राम के थ्रू बताओ। हरजिंदर, दिस इज गुड। ई व्हीकल्स के बारे में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, शॉर्ट एंड कंसाइज है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी एक पेज में बहुत। आप एक पेज भी अगर डेली लिख रहे हो ना, एवरी वन ऑफ यू हूसोएवर इज वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप एक पेज भी डेली लिख रहे हो, 3 सवाल के 3 पेज लिख रहे हो, आप 99.99% से स्टूडेंट से बेहतर हो। आपको लिखना चाहिए। मेंस में बिना लिखे नहीं होता है सिलेक्शन में, फिर बार बार बोल रहा हूँ, लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। नंदनी, दिस इज रियली गुड। ई व्हीकल्स, वेरी, देखो कितना अच्छा डायग्राम है। क्रिएटिविटी ऐसे करना है, वेरी गुड नंदनी, दिस इज वेरी नाइस। सी, ऐसे करके अपनी कॉपी को यूनिक बनाना है आपको। सी दिस डायग्राम, वेरी नाइस। राइटिंग भी बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। हरजिंदर ने देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया, लाइटनिंग क्लियर हो गया। मेंस में आप ऐसा डायग्राम बना दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंजू, दिस इज गुड। एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत सिस्टमेटिक है, स्ट्रक्चर्ड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी को और एनरिच करते चलिए। राम नरेश ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं। देखो व्हाट इज ई व्हीकल, एग्जांपल्स क्या है, टाइप्स क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वेरी गुड। वे फॉरवर्ड क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत अच्छे से बताया। लुक एट द राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कंटेंट, वेरी गुड राम नरेश। लाइटनिंग का ये डायग्राम देखिए, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, वेरी गुड। तो एक दूसरे को ऐसे चैलेंज भी करिए, हमको बेहतर बनना है, हमें एक दूसरे से सीखना है, वेरी गुड। नंदनी, दिस इज गुड। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया, सारे पॉइंट्स लिखे, वंडरफुल। अमरजीत, दिस इज गुड। सी, हिंदी में कितने अच्छे से लिखा है, चुनौतियां सरकार ने अभी क्या स्टार्ट किया। रफी, हम ब्लैंक पेपर में लिखना चालू करते हैं, बिकॉज एग्जाम में रूल्ड नहीं होगा ना, वो ब्लैंक होगा। लेट अस ट्राई, गिव इट अ ट्राई। तो ये बहुत अच्छे से लिखा है आपने, वेरी गुड। वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, देखो डायग्राम भी रफी ने बनाया, दिस इज एक्सीलेंट, वेरी नाइस। एंटी डिफेक्शन लॉ भी क्लियर किया है, वेरी गुड। नंदनी, दिस इज गुड। लाइटनिंग ज्योग्राफी, वेरी नाइस। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। शिवाक्षी, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो। सी, कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है। एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया, हेडिंग, सब हेडिंग, ई व्हीकल्स के बारे में भी बताया। इन सबको ना हम एक काम करते हैं, एक पोस्ट पे एक ही आंसर लिखते हैं, तो इससे वो मिक्स नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन खत्म हुआ, अब इसको अगले पोस्ट में पोस्ट करते हैं। ई व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ ई व्हीकल्स, ये बहुत अच्छा स्टाइल है। देन एडवांटेज, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। अंकित, दिस इज रियली गुड। टाइप्स ऑफ ईवीज बताया आपने, वेरी गुड। आप जितना ज्यादा लिख सकते हो ना अंकित, आप लिखो, आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है। यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक, राइट राइट एंड राइट। जितना ज्यादा लिखेंगे ना उतनी ही सारी चीजें बैंक होती जाएगी, कंसोलिडेट होती जाएगी। जस्ट राइट 5 to 10 पेजेस ऑन डेली बेसिस। गजानन, दिस इज रियली गुड। सी, मराठी में कितना बढ़िया आंसर लिखा है, कितनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, दिस इज गुड। डायग्राम देखो, दिस इज सो नाइस। सो इस तरीके से एवरीबडी पार्टिसिपेट, अपनी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। लेट अस take the maximum advantage out of all these initiatives. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.